So yes, hello everyone, this is Abhay and आज हम continue करने वाले number 3 lecture 2. So in this video we will study about the prime factorization of a number. Like you are given a number and you have to print all the prime factors of a number. Right, we are given a number, let's suppose the number is 48 and the prime factorization of 48 is 2 into 2 into 2 into 2 into 3, right? We have to print this in the output, right? This is called the prime factorization number. Like we will firstly implement the code of n square log n, which is also the n square root n log n. Then we will optimize it to square root n, right? Square root of n, square root of n, right? Yeah. So before getting started, let us know about the Newton School. So Newton School is a high tech company which teaches you full stack development. They didn't take any fee until you get placed in the top companies. You can check out here. And the another best thing is that they give you the live classes, the industry projects, and the personal mentoring is provided to you. Yeah. So the all the mentors are from the top-notch companies. You can check them also right here, and they have also known as a cool feature called as Launchpad, where you can sit and write the code. And after writing the code, you will be getting the certificate of completion, and you can check out the best courses available here by the top mentors right here. And still, you have any question, you can check out the FAQs right here on the website, and all the links of the website are in the description. You can definitely visit it out, right? So let's get started with today's topic, prime factorization. So like if you are given a number, let me just take an example of a number like 48 only. So representing a number in its prime factor means we are dividing a number. Like if I find कि मुझे इसके अंदर सबसे पहला नंबर फाइंड करना है जो प्राइम है. अब मैं इसको 2 से डिवाइड किया तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर ही जाऊँगा जब तक वो 2 से डिवाइड नहीं होगा. मतलब जब मैं इसको 2 से डिवाइड करा, ये बन गया 24. फिर 2 से किया, एक मिनट, या फिर मैं 2 से किया तो ये बना 12. फिर मैं 2 से किया तो बना 6. फिर मैं 2 से किया बना 3, राइट. अब ये 3 जो है ये 2 से डिविजिबल नहीं है. सो राइट नाउ आई विल चेंज द नंबर. मीन से मैं आगे मूव करूँगा, मैं अगला नंबर फाइंड करूँगा जो 3 से डिविजिबल है. मीन्स वो 3 है तो यहाँ पर बन जाएगा 1. सो दिस इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर, राइट. अब इसका कोड करते हैं. मतलब सबसे पहले हम बेसिक कोड क्या कर सकते हैं, हम 2 से लेकर n तक रिवर्स कर सकते हैं. फिर उसके बाद अगर मान लो i के बारे में देखना है, ठीक है. इफ़ i इज़ प्राइम, राइट. यहाँ पर हम प्राइम चेक करेंगे. अगर ये प्राइम है तो फिर हम क्या करेंगे, उस नंबर को जब तक वो i से डिविजिबल है हम उसको कर ही देंगे. मतलब जैसे अभी नंबर है n, मतलब अभी जो नंबर n है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे. कब तक, जब तक n डिवाइडेड बाय i इज इक्वल टू 0 है, राइट. फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर देखेंगे जब तक वो डिविजिबल नहीं होगा n तक, ठीक है. जब हर एक प्राइम नंबर जो उसको डिवाइड करता है, ठीक है. इसके इम्प्लीमेंटेशन करते हैं फटाफट से. वैसे ये ब्रूट फोर्स है तो आइडिया मिल जाएगा, ठीक है. और उसे प्राइम चेक करने से जो पिछले वीडियो थे उसकी आइडिया क्लियर हो जाएगा, ठीक है, राइट. सो लेट अस टेक द इनपुट n फर्स्ट. Then what we have to do, we have to find all the prime numbers, right. Okay. We will run the loop from 2 to n, and then we will check of n. Let me create a function which check whether the n is prime or not, right. We are not checking n, it is I, whether the I is prime or not, because we have to divide the n by I, right. Yeah. Okay. So but how do we check whether the n is prime or not, right. We will run the loop of the square root n, which we have studied yesterday, which is 4. From I is equal to 2 to square root of n inclusive, right. If n divided by I is equal to 0, then we return false, because we find another factor which makes it co-prime. Otherwise we will return 2, right. Okay. If this is prime, right,
then I will store the I in a variable called as value, then I will divide, I will run until n divided by value is equal to 0. If this goes on, then I will print I, and then I will multiply value, multiply is equal to I, right. So I think this should work. मीन्स अभी तक हमने किया क्या है कि यहाँ तक हमने पूरा 2 से लेकर n तक चलाया, अगर वो I जो है वो प्राइम है तो मैं उस नंबर को I से डिवाइड करता जा रहा हूँ, मतलब n को 2 से डिवाइड करूँगा, फिर 4 से, फिर 8 से, फिर 16 से, मतलब 2 2 2 ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ जब तो वो 2 से डिविजिबल है, ठीक है. इफ़ आई टेक द नंबर 48, देन इट मस्ट गिव 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट. इफ़ आई, अगर मैं यहाँ पर ही प्राइम नंबर ले लूँ, लेट्स सपोज 47, देन इट मस्ट गिव मी ओनली 47. ओके 47 नहीं दे रहा क्योंकि मैं यहाँ पर इस टू n लगाया, राइट, क्योंकि सिर्फ वो 47 को डिवाइड करेगा. इफ आई जस्ट रन इट अगेन, then just a minute, it just figure, yeah, 47, then it give me 47, right. So this was like, अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो ये लूप चलेगा n टाइम तक. चेक करने के लिए स्क्वायर रूट n कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है. एट मैक्स अगर पूरा प्राइम है, अगर हम यहाँ पर n तक का चलाएं तो एट मैक्सिमम अपर बाउंड उसका n तक जा सकता है. और ये वाली चीज़ log n चल रही है कि मतलब अगर प्राइम है अगर, तो उसको हम डिवाइड कर रहे हैं कब तक, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो फिर वो log n टाइम चल रही है उसको सारे फैक्टर निकालने के लिए. तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी इसकी n स्क्वायर रूट n log n या फिर n स्क्वायर log n, राइट. सो अब इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं इस कोड को, ठीक है. अब अगर n की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो लाइक वी कान रन n स्क्वायर log n अप्रोच इन दिस, सो हाउ वी कैन ऑप्टिमाइज. सो उसके लिए जो हमने एक कल कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हर नंबर पेयर्स में अकर करता है, हर नंबर का डिवाइजर्स, राइट. जैसे अब 48 की बात करते हैं तो 48 के जो डिवाइजर्स होंगे 1 2 3 4 6, राइट. देन दे अकर्स इन अ पेयर ऑफ 48 24 and here 16 and here it comes 12 and here it comes 8, राइट. अब इसी चीज़ को हम यूज़ करके हमने कल प्राइम चेक करने के लिए हमने ऑप्टिमाइज़ किया था फ्रॉम आई ऑफ अप्रोच ऑफ n टू स्क्वायर रूट ऑफ n, राइट. अब इसी चीज़ को हम दोबारा यूज़ करके हम इसकी अप्रोच चेंज करेंगे n स्क्वायर log n टू स्क्वायर रूट ऑफ n, राइट. वो कैसे करेंगे, वही ऐसे होगी कि अब हमें पता है कि हर नंबर का जो जैसे मैं एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूँ, जैसे लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पर स्क्वायर रूट n अकर करता है. हर नंबर का पहला फैक्टर जो होगा वो उसकी लेफ्ट साइड पे क्या करेगा, ठीक है. तो मतलब यहाँ पर अब मानो ये उसका पहला प्राइम फैक्टर है, तो मैं क्या करूँगा, इस फैक्टर से मैं यहाँ पर अभी n है तो n को मैं डिवाइड करते जाऊँगा कब तक, जब तक उसमें से वो फैक्टर ख़त्म नहीं हो जाएगा. जैसे मानो 2 में क्या 48 में क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट. अब यहाँ पर एक और मान लो 5, लेट्स सपोज 5, मैं आंसर निकालना मुश्किल होगा. सो लेट्स सपोज दिस, ओके ठीक है, इतना ही ठीक है. सो हाँ, तो अब इसमें क्या करूँगा, पहला हमें फैक्टर मिला 2, आई टू आई स्क्वायर रूट n में गया तो उससे मुझे मिला 2. अब व्हाट आई विल डू इज़ आई विल जस्ट डिवाइड n बाई 2. आई विल नॉट मतलब अब मैं वैल्यू स्टोर नहीं कर रहा हूँ, अब मैं सीधा n को डिवाइड कर रहा हूँ 2 टाइम्स, लाइक मतलब मैं n को 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया. तो इस वक्त क्या बचेगा, n बचेगा 3 और सिर्फ यहाँ पर. अब जो लूप चलेगा वो 2 को हट 2 तो निकल चुका होगा, सिर्फ अब बचेगा कितने, 3 से लेकर स्क्वायर रूट n तक, ठीक है. अब जैसे यहाँ पर 3 एक था, अब यहाँ पर एक 3 और लगा लो, अब बचेगा 3 इंटू 3. अब लूप कहाँ चलेगा, 3 से लेकर 3 इंक्लूसिव, मतलब जो पहला फैक्टर होगा 9 का वो होगा 3, तो फिर वो रेंज कम हो जाएगी, ठीक है. जैसे अभी लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. इफ़ आई टेक 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ओके 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, राइट. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल फर्स्ट लाइक अब हमें पता है कि इसकी जो स्क्वायर रूट की वैल्यू होगी वो 2 इंटू 3 इंटू 7 होगी, विच इज़ लाइक 6 इंटू 7 विच इज़ 42. So first we will run from 2 to 42 loop, okay. Like we will go in the first stage, first iteration we will check over here and इस रेंज में मुझे सिर्फ 2 मिलेगा अभी तक जो इसको डिवाइड करेगा. तो मैं क्या करूँगा, पहले 2 को रिमूव कर दूँगा. अब बचेगा 3 इंटू 7, तो अब n की रेंज कितनी शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ से 21 तक. या अभी n की रेंज शिफ्ट हो रही है, ठीक है. स्क्वायर रूट n, ओके वी आर ट्रावर्सिंग टू स्क्वायर रूट n.
सो 3 इंटू 7 विच इज 21. तो हम स्क्वेयर रूट एन अगली रिवर्सल में क्या करेंगे, हमने 2 हमने देख चुका होगा, तो देन वी विल कम एट 3. लेट मी चेंज द कलर. देन वी कम एट 3. देन वी चेक फॉर 3 to 21, right? Now I find 3 here which divides this, then I will remove this all. Now I get 7. 7 as n square, square root of n, I get 7. Then I will run loop from 4 to 7 in third iteration. Then I am not getting 4 as a divisor because 4 is not prime, because 4 is not dividing 7, because जो नंबर बचेगा एंड में वहाँ से लेकर एंड तक उसमें नॉन प्राइम डिवाइड करेगा ही नहीं, क्योंकि जो हमने जैसे 4 आया तो 4 के साथ डिवाइजर वाले 2 थे तो वो हमने डिवाइड कर चुके हैं पहले, राइट? सो जो अब सबसे पहला डिवाइजर आएगा वो प्राइम डिवाइजर होगा. अब जो प्राइम डिवाइजर नहीं होगा उसके हमने फैक्टर्स पहले निकाल चुके होंगे. अब जैसे 4 नहीं है, 4 को हम स्किप करेंगे. देन वी विल मूव ऑन 5. 5 यहाँ का डिवाइजर नहीं है कोई, बिकॉज आंसर n इज 49, राइट? देन 5 विल बी स्किप्ड, देन 6 विल बी स्किप्ड, देन 7. Then 7 will come, then we will remove all the 7s right here, then I will get the answer as 0, and I have printed, मैंने उस वक्त तक सारे फैक्टर्स प्रिंट कर चुके होंगे. अब इसमें एच केस ये आता है कि लेट्स सपोज कि यहाँ पर 7 इंटू 7 की जगह मेरे पास सिर्फ 7 होता है. जस्ट मेरे पास 7 इंटू 7 की जगह सिर्फ 7 होता है, ठीक है? तो एंड में क्या बचता है, हम एंड में जो हम काम कर रहे हैं वो हम स्क्वायर रूट ऑफ n तक कर रहे हैं, ठीक है? अब पर जब हमारे पास बचा ही सिर्फ 7 है तो हम स्क्वायर रूट ऑफ 7 वो 7 से कम होगा तो लूप चलेगा 7 से लेकर 7 से कम तक का, ठीक है? तो वो लूप चलेगा ही नहीं. अब फिर हम एंड में सिर्फ हमें एक कंडीशन चेक करनी होगी, अगर n जो है वो 1 से बड़ा है, कि मतलब अगर हमने सारे रिवर्सल करने के बाद अगर कोई n की वैल्यू बचती है वो 0 नहीं है, 1 नहीं है, तो मतलब वो नंबर जो बचा है वो सिर्फ सिंगल प्राइम नंबर बचा है, उसको हम सीधा प्रिंट कर देंगे, राइट? सो अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं, राइट? जस्ट सो लेट मी जस्ट ओके, हम यहाँ कंपैरिजन कर लेंगे कि हमारा आंसर सही आ रहा है. ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, जैसे मैंने बताया अभी कि हम एक लूप चलाएंगे फ्रॉम I इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n, राइट? जस्ट वेयर इज द पेन. ओके, इट हैज गॉन. सो अब हम यहाँ से लूप चलाएंगे I से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ n तक. देन वी विल चेक whether while the current I is dividing n, अगर वो डिवाइड कर रहा होगा तो उसको हम डिवाइड करेंगे जब तक n I से डिविजिबल नहीं हो जाता, राइट? n divided by I is equal to 0, then we will divide n by I, right? Then at this point I will be printing out I, right? At last, if I have done all this iteration and if still I got n is more than 1, then I will print n, because this is the last n, right? Now let me check out the answers on both these cases, right? Now okay, just a minute. Yeah, if I check for the 48 first, then yeah, you can check out the answer are both same, but the complexity of this algorithm is square root of n. You can say that it is running square root of n log n time, but no, if I go under the test case, I don't know where I've just throw the pen. Okay, it is here. So if I check for the prime case only, like if the given number is fully prime like 1024, or if I check for the only 8, which is 2 into 2 into 2, then it will no, if the number is if the number is fully made of prime numbers, different prime numbers like 2 into 5 into 7, then we will run 2, then 5, then 7. Then we will not come under the while condition, because there is only one number which is dividing, right? Then the complexity comes to square root of n, right? At max square complexity is square root of n. So yeah, so this is the implementation of this code. If I just put, okay, just a minute, if I just run the give the input of a prime number, then it will just throw the prime number back, right? Because none of them will be dividing it, and we will just get n by more equal to 1. I need to put here equal to.
just yeah, yeah, you can see it, right? So this was this video of prime factorization. If you like it, do subscribe the channel and press the bell icon for the daily notification. And do check out the Newton School page and check out the free courses available here. So yeah, happy coding and do practice this question out, right? So till then, bye.